Fine. Huh. So quickly to introduce the head of public diplomacy, Mr. Brandon Skinner from the Australian Consulate. He's joined us. He's very much here. And Brandon, Mr. Mangesh Wange, the CEO of Swadesh Foundation, is here. So before we begin with today's session, like Mangesh sir, I have very briefly set the context for Brandon over here. But if you could also just take a minute, to tell him a little more about Swadesh Foundation, and then probably I can begin it for our audience. Sure. And sir, about Digital Swadesh, how we thought of this program and how it is benefiting to the community. Yeah, so you want me to tell or you're telling something? Yes, sir. नाही सर जब तक लोग जॉईन हो रहे हैं रायगड मध्ये जे लोक जॉईन होतात मी त्यांना सांगते तुम्ही जमा व्हा आपण एकदम 2 मिनिटात सुरू करूया पण आपल्याकडे जे पाहुणे आले आहेत ब्रँडन सर त्यांना आपण फक्त इंग्लिश मध्ये स्वदेश फाउंडेशनची थोडीशी माहिती देऊया तर मंगेश सर त्यांना इंग्लिश मध्ये ती माहिती देतील पण तोपर्यंत तुम्ही जमा व्हा आणि कार्यक्रमात भाग घ्या सर जस्ट अ मिनिट ऑफ योर्स Yeah, okay. Thank you, Bhavna. So, Brendan, I think it's great pleasure to have you and your team, and also our guest speaker, who is Karishma, is going to be talking to all of us shortly. I think it is very momentous occasion today, especially on International Women's Day, and till more and more participants join, let me also share with you something more about Swadesh. I think association with the Australian Consulate has been quite long one, very fruitful. Every year we find something new and very valuable being contributed by Australian Consulate. And I remember your team visiting jointly with us Raigad couple of years back. So Swadesh Foundation is working in 8 blocks of Raigad district, which is about 4 hours from Mumbai, and one Igatpuri in Nashik, which we have just started last year. So this model is very holistic in terms of both geography and the approach. We take complete geography, all households in that geography, and then we work on holistic development of that community. It is 360-degree approach where we believe there is no single silver bullet to really solve all problems. So we take water and sanitation as the basic needs which we have to first fulfill, and along with that, health and education. So once these things are in place, we can work towards making permanent positive change in the lives of people. And to do that, besides health, education, water and sanitation, we also have to ensure very good quality of life through economic empowerment. So each household must be economically independent, should have at least 2 sources of income, and should sustain themselves even if so they stops working. So we work on this very good strategy of 4 E's. First E stands for engagement, second empowerment, third is execution, and fourth is exit. So we believe that every 5 to 6 years we should be able to really make a sustainable impact, and then we can move on to the new geography. We right now work with almost 1 lakh households, about 500,000 population. And given the model of holistic approach, and we work with every household, we end up working with all age groups, and young and old, pregnant women to senior citizens, and college-going students, school-going students, Anganwadis, which is basically less than 3 years of age. So we work with all age groups. We are actually an implementation foundation, so we actually work on ground. So we have more than 250 people who are working with community. And one of the biggest thing which has happened is community empowerment through village development committees in last couple of years, where we form a village committee of the villagers. It is a voluntary community institution, and they actually ensure once we leave, they can sustain the work. They can work with their, because they understand the need very well. So we work on their capacity building, how to really understand the needs of that village, how to convert that in needs into some kind of a annual plan, and they can actually do monitoring and evaluation also. So a very well documented process which we have. We do a lot of capacity building workshops and training for them.
At the same time, we keep on implementing those programs related to water, health, education, sanitation, and economic empowerment. Finally, the point which today's setting, which is about digital Suresh. So last year, due to COVID, we all have seen work from home for urban population to a large extent. However, what we have seen, villagers, more so kids and women, have really not been able to leverage this situation where technology can really they can continue with a lot of things in their lives even with the help of technology. So somewhere last year when lockdown started exactly a year ago in April, May, one of our program actually went totally digital where since we could not visit field, so we reached out to these village development communities. All of them have bank accounts and about 40% of them have 4G connectivity. So we reached out to them, we trained them about one of our program, which is called New Orchards, where we give fruit saplings, horticulture plants to farmers. And during monsoon, they have to plant those saplings. However, before they are given those plants, they have to undergo a training. Then they pay their share of donation. They undergo certification. Everything was done online without our team because we just could not visit. So it was kind of, we were forced by the situation, but it worked beautifully. And then once lockdown was lifted, we felt that we should continue our digital engagement. And then last 4-5 months, we are working on getting some of the programs which otherwise normally we were not able to do, to reach out to rural population where the 4G connectivity is good. They can connect through Zoom. And interesting thing is we initially had reservation whether rural community will find it easy or difficult to connect on Zoom. But they're very smart. They picked up things. They can ask questions. They raise their queries through chat box. And engagement we have found, especially among women and youth, girls, very good engagement. They are asking good questions. And with youth sports, U Mumbai, we have been able to do a lot of interesting things, good engagement, and we thought this is a good time to, and we are looking for many programs. And incidentally, I think your proposal had come and our team was excited. Yeah. We already crossed 100 participants connections, as we can see, but each connection has at least 2 to 3 more people on single connection. So we must be having at least 250, 300 plus women on our network today. And you just can't imagine. Some of them are so deep and interior, it will take 5-6 hours to reach. And so I'm actually very happy that such a good number and topic of the day is again very interesting and relevant. Yeah. So I hope that gives a good understanding of what we are doing. That's an incredibly useful summary. Thank you. Thank you. Thank you, Mangesh sir. Thank you. सर आता अभी जो लोग हमारी राह देख रहे हैं, Brendan, the people who are waiting for us, so I'll just quickly go ahead and address them first, and I'll come back to you in a minute. Yeah. तर सगळ्या बहिणींनी ज्यांनी जॉईन केलेलं आहे रायगड ग्रुपमध्ये, त्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा जागतिक महिला दिवसच्या शुभेच्छा. हॅपी वुमन्स डे टू ऑल ऑफ यू. आणि तुमचं या सत्रात आजच्या स्वागत आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे आज हा दिवस तुमचा दिवस आहे, माझा दिवस आहे, आपल्या सगळ्यांचा दिवस आहे, महिलांचा दिवस आहे. तुम्ही तुमच्या ठिकाणी पण मला वाटतं आरोग्य कॅम्प चालू आहेत किंवा वेगवेगळ्या इव्हेंट चालू असतील, तर धन्यवाद की तुम्ही त्याच्यातूनही वेळ काढून इकडे जॉईन झालेला आहात. आपला आजचा सत्र हा खूप महत्वाचा सत्र आहे. ते आपण जोडलेलं आहे तुमच्या तब्येतीने, तुमच्या आरोग्याने. ते एक खूप महत्वाचा एक पार्ट आहे आपल्या आयुष्यातला, जे आपण बऱ्याच वेळी त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. आणि तुम्हाला मला वाटतं पटेल मी जे बोलते त्याच्याशी, कारण आपण आपल्या घरची काळजी घेतो, आपण नवऱ्याची काळजी घेतो, आपण आपल्या मुलांची काळजी घेतो, आपण आपल्या सासू सासऱ्यांची काळजी घेतो, पण बऱ्याचशा वेळी आपण आपली काळजी घेण्याचं आपण कधी विचारही करत नाही किंवा विचार केला तरी आपण ते आचरणमध्ये आणत नाही. पण जेव्हा आपलं आरोग्य व्यवस्थित असणार, जोपर्यंत आपण आपली काळजी करणार नाही, तोपर्यंत आपण आपल्या घरच्यांची काळजी करू शकत नाही. आणि हे तुम्हाला पटत असेल, तुम्ही म्यूटवर आहात, पण तुम्ही तुमच्या हावभावाने मला सांगू शकता की तुम्हाला पटते की नाही मी जे बोलतेय ते. हा, तर आरोग्य आपलं खूप महत्वाचं आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे आपण डिजिटल स्वदेश या प्लॅटफॉर्म मधून बऱ्याचशा गोष्टींवर आपण चर्चा करतोय, पण आरोग्य हे महत्वाचं.
म्हणजे आपण यू स्पोर्ट्स बरोबर आपण सगळं ते हेल्थ सेशन घेतल्या. म्हणजे आपण रोजच्या रोज व्यायामाची सवय लागेल, आपल्याला एक डिसिप्लिन येईल, आपल्याला डाएट मिळेल, काय खायचंय, काय नाही खायचंय ते आपण आधी केलेलं. मग आपण डॉक्टरांशी चर्चा केली आपल्या आरोग्याच्या प्रश्नांबद्दल. तर हा त्याचाच पुढचा एक टप्पा आहे. जे आपण एक फिटनेस सर्किट हा आपण या महिन्यात मार्चच्या महिन्यात आपण एक सुरू करतोय. यू स्पोर्ट्स आणि ऑस्ट्रेलियन काउन्सिलेट त्यांच्या पार्टनरशिपमध्ये. तर स्वदेश फाउंडेशन, डिजिटल स्वदेशच्या माध्यमातून ऑस्ट्रेलियन काउन्सिलेट आणि यू स्पोर्ट्स त्यांच्या पार्टनरशिपमध्ये मार्चच्या पूर्ण महिन्यात आरोग्याबद्दल योगा, न्यूट्रिशन, तुमचे जे इथे मान दुखते, पाठ दुखते, काय खायला हवंय, काय नाही, कसं बसावं, या सगळ्या अशा वेगवेगळ्या विषयांवर मार्चच्या वेगवेगळ्या तारखांमध्ये तुमचे सेशन घेतले जातील. मी तारीख बद्दल शेवटी तुम्हाला सांगेन. तर आजचा आपण हा कार्यक्रम सुरू करूया. जसे पाहुण्यांची मी ओळख करून देते, तुम्ही ओळख करून घ्या. सेशन अटेंड करा, लक्ष देऊन, म्यूटवर ठेवून. तुमचे प्रश्न असतील ते चॅट बॉक्सवर मला लिहून विचारा. मी ते आपल्या आजच्या ज्या गेस्ट आहेत त्यांना विचारीन आणि मग शेवटी आपण ओपन सेशन घेऊ. वेळ असेल तर आपण ओपन सेशन घेऊ. ठीक आहे? तर सुरुवात करण्याच्या आधी बिफोर वी ऑल स्टार्ट माझी सगळ्यांची विनंती आहे की तुम्ही तुमचे व्हिडिओज ऑन ठेवा. आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू स्विच ऑन देअर व्हिडिओज. आपण एक ग्रुप फोटो घेऊया. आपल्या ज्या पाहुणे आहेत त्यांना पण आपला एक फोटो हवाय, स्वदेशच्या टीमला पण आपला एक फोटो हवाय. सगळ्यांनी प्लीज आपले व्हिडिओ ऑन करा. सगळ्यांची विनंती आहे, प्लीज फक्त एक 30 सेकंड आपला व्हिडिओ ऑन करा. आपण एक फोटो काढूया. I hope Arjun and Alia, you're clicking pictures. Let me know when they have to stop smiling. Harsh, okay, good. I've got a thumbs up from Swadesh. So, any more pictures? Or we can... I've got it. Thank you. Okay, so आपण आता नॉर्मल होऊ शकतो. तुम्हाला व्हिडिओ ऑन ठेवायचा असेल, नेटवर्क असेल तर ठेवा. नाहीतर तुम्ही व्हिडिओ ऑफ करा आणि म्यूटवर राहा. ठीक आहे? थँक्यू सगळ्यांना फोटोसाठी. थँक्यू. आपला फोटो तुम्हाला ट्विटरवर दिसेल. ठीक आहे. तर आपण सुरुवात करूया. मी सगळ्यात आधी आपले जे हेड ऑफ पब्लिक डिप्लोमसी आहे ऑस्ट्रेलिया काउन्सिलेट मधून जे आपल्याला जॉईन झाले आहेत, ब्रँडन स्किनर सर, मी त्यांना आमंत्रित करते की ते 2 शब्द तुमच्याशी बोलतील आणि ते इंग्लिशमध्ये बोलतील, पण मी प्रयत्न करेन ते समजायचं आणि ते मराठी तुम्हाला ट्रान्सलेट करून सांगायचं. समजा मी काही चुकले तर नीता किंवा प्रसाद सर प्लीज हेल्प मी. ओके, इफ आय मिस समथिंग. But welcome, Brendan sir, and over to you to share your thoughts with the audience today. We are here to help you translate. Wonderful. Thank you so much. Namaste, everyone. I'm proud to celebrate International Women's Day with you with this incredible program being delivered with U Sports and the Swadesh Foundation. Yeah, okay. तर त्यांनी सगळ्यांना जागतिक महिला दिवसच्या शुभेच्छा दिल्यात आणि सांगितलंय त्यांनी की त्या खूप खुश आहेत यू स्पोर्ट्स आणि स्वदेश फाउंडेशन बरोबर ते तुमच्याशी जुळले तिकडे आणि आजचा एक सेशन घेत आहेत. येस सर. Australia deeply supports gender equality and empowering women and girls across the world. ते जेंडर इक्वालिटी म्हणजे नीता तुम्ही हेल्प करू शकता का मला? जेंडर इक्वालिटी आणि एम्पॉवरमेंट म्हणजे सशक्तीकरण आणि पुरुष आणि महिला या दोघांना एका सेम पातळीवर कसं काम करायला पाहिजे या दोन्ही विषयांचा ते खूप सपोर्ट करतात. Today, we are delighted to have Australian alumni and sports scientist Karishma Bolani to share her knowledge of nutrition with you. तर आजच्या ज्या प्रमुख पाहुण्या आहेत करिश्मा बुलानी, ज्या खेळाचे ते सायंटिस्ट आहेत म्हणजे आणि न्यूट्रिशन या विषयावर त्यांची एक्सपर्टीज आहे, ते तज्ञ आहेत या विषयावर. तर ब्रेंडन सर खूप आनंदित आहेत की आज करिश्मा मॅडम आपल्याला जुळतील आणि आपल्या नॉलेज ते आपल्या बरोबर शेअर करतील. And through the session, you can learn to help yourself, your family, and your village become stronger, healthier, and happier.
आणि या सेशन मधून आपल्या सगळ्यांना, त्यांना खात्री की आपल्या सगळ्यांना खूप मदत होईल, आपल्यासाठी, आपल्या घरच्यांसाठी आणि सगळ्यांचं आरोग्य व्यवस्थित राहण्यासाठी आणि एक खुशहाल जीवन जगण्यासाठी. Yes. Yeah, join us for the rest of the sessions for the rest of March to learn about health from the best alumni in sport. तर त्यांची विनंती आहे की मार्च मधले आपले जितके पण सेशन्स आहेत ते तुम्ही सगळ्यांनी त्याचा भाग घ्या आणि त्याचा पूर्णपणे फायदा घ्या. धन्यवाद. हे तुम्हाला समजलं असेल, त्यांनी धन्यवाद म्हणून आपल्या शब्दांचा एंड केलेला आहे. So thank you, sir. Thank you for speaking to us. And now I think if I can just give a minute to Sauptik from U Sports, if he could share his thoughts on this entire initiative. So Sauptik. Sauptik, you there? Yeah, he is there. On mute. I think he is on mute. Okay, I received an Yeah, hi. Yeah. Hi. Hello, Sauptik. अभी आवाज आ रही है मेरी? Hello. हाँ, Hi. हाँ. Hi, Mangesh sir. Hi, Bhavna. Hi, everyone. Wishing everyone a very happy Women's Day. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. करिश्मा has a very very cool session ahead. Just want to add that हम लोग लास्ट 1.5 से 2 महीने स्वदेश के साथ फिटनेस सेशंस के सर्किट कर रहे हैं और उसमें हमने देखा है कि हमारे जो कोचेस हैं उन्होंने काफी हद तक आप लोगों को हेल्प किया है फिटनेस के बारे में जानकारी देने तक. हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन कंसुलेट जनरल के साथ. यू स्पोर्ट्स, यू मुंबा, आप सबके चाहिए टीम है. हम लोग बहुत जल्दी कोशिश करेंगे. हमारी ऐसी बातें चल रही है जो जल्दी हम लोग रायगढ़ में आके थोड़े सबसे मिलना चाहते हैं, तो हम लोग वो भी कोशिश कर रहे हैं. तो होपफुली वो जल्द से जल्द होगा. बट थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. आई थिंक ओवर द लास्ट 3 months ये हम लोग जो अभी सेशंस कंटिन्यू करने वाले हैं वो जस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ फिटनेस सर्किट होने वाला है. तो योगा जिसको जो बात कर सकते करिश्मा से पूछिए. शी इज अ renowned sports scientist and she will answer, I'm sure, everything. Thank you and all the best, and let's just start it. Thank you so much. Thank you Sauptik. Thank you. सगळ्यांना समजलं असणार कारण सौप्तिक सरांनी हिंदीत बोललेलं आहे, पण महत्वाची गोष्ट जे त्यांनी सांगितली आहे, if you can just wait for the screen sharing. Yeah, just a minute, Karishma. Can we stop the screen sharing for a minute? Yeah, thank you. तर त्यांनी महत्वाचं हे सांगितलं की ते लवकरच रायगडमध्ये व्हिजिट होणार आहे. तर थँक्यू सौप्तिक. सो आता मी मंचावर आपले स्वदेश फाउंडेशनचे जे सीईओ आहेत मिस्टर मंगेश वांगे, त्यांना पुढे आमंत्रित करते की ते तुमच्याशी 2 मिनिट या विषयावर बोलतील. मंगेश सर, ओव्हर टू यू. सर्व गावाच्या जेवढे आपल्या आज इथे सभासद जमले आहे सगळ्यांना खूप खूप नमस्कार आणि जागतिक महिला दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. एक खूप चांगली संधी आपल्याला आहे आज आणि आपल्यातले पुष्कळ सभासद मागच्या 3-4 महिन्यापासून आपले सगळे सेशन अटेंड करतात आहे. सर्वप्रथम त्यांचं खूप खूप अभिनंदन. आणि एक आपण आज जे सुरू करतोय हे खूप चांगली संधी आहे, आपल्या दारी आलेली आहे आणि सगळ्यांना आवडता आणि मनाचा विषय जो आरोग्य ते आहे. खास करून 2-3 गोष्टी आपल्याला जे लक्षात घ्यायच्या त्या आहे की एवढं ऑस्ट्रेलिया देश आपण म्हणतो, एवढा मोठा देश आणि विकसित देश आहे, तिथले लोक आपल्यासाठी काही करू इच्छितात आणि खास करून फिजिकल फिटनेस आणि खेळांमध्ये ऑस्ट्रेलिया खूप नावाजलेला एक देश आहे. आणि आपल्याशी जे पुढचे 4 आठवडे तज्ञ येऊन बोलणार आहे, भेटणार आहे, आज जसे करिश्मा मॅडम आहे, हे तिथे राहून तिथून शिकून तिथल्या लोकांबरोबर चांगलं काम करून ते आपल्याकडे आलेले आहे. तर एक खूप चांगली संधी आहे की जे त्या विषयातले तज्ञ लोक आहे आणि पूर्ण आपण सायंटिफिक माहिती जी आपल्याला देणार आहे आणि खास करून ते हिंदी आणि मराठीमध्ये. आज तर बहुतेक करिश्मा मॅडम हिंदीमध्ये बोलतील, पण पुढचे जे 2-3 आठवडे त्याचे आपल्याला मराठी बोलणारे पण गेस्ट येतील. तर हे जे 4ही सेशन आहे ते एकामेकाशी
जुळून आहे, असं नाही की आज जे आहे पुढच्या आठवड्यात कामात नाही. तर तुम्हाला एवढी विनंती आहे की आजचं जो पण सेशन आहे, तुम्हाला जर वाटत असेल खूप तुम्हाला काही त्याच्यात अडचण असेल, तुम्ही मॅडमला सांगा, ते तुम्हाला पुन्हा सांगतील हिंदीमध्ये. काही घाई नाही आहे. मग पुढचा एक आठवडा त्याच्यातल्या काही गोष्टी तुम्ही अंमलात आणून पहा. तुम्हाला काही जमणार, काही जमणार नाही. आणि पुढच्या आठवड्यात जे पुणे आपले गेस्ट येतील तेव्हा तुम्ही ते प्रश्न विचारू शकता. ते 3-4 आठवडे आपल्याला फक्त शोषून घ्यायचं आहे यांच्याकडनं जेवढं यांचं ज्ञान आहे, यांची माहिती आहे. त्याच्यात काही गोष्टी करायच्या आहे. काही गोष्टी तुम्हालाही माहीत आहे जे तुम्ही करत असाल. असं काही नाही. पण काही गोष्टी आपण कुणाला विचारावं, कधी आपल्याला संधी मिळते, कधी मिळत नाही, कधी लाज वाटते, लोकं काय म्हणतील. इथे एकदम बिलकुल दिलखुलास बिना कोणत्या संकोचमुळे तुम्ही आपल्या मनातलं काही प्रश्न असतात तुम्ही विचारू शकता. ते तुम्ही पुढच्या एका आठवड्यात त्याच्यावर तुम्ही अंमलबजावणी करून पहा. आपले अनुभव पुढच्या मीटिंगमध्ये तुम्ही सांगा. चांगले वाईट जे अनुभव आहे, आपण एकमेकांकडनं शिकूया. आणि मग एकदा तुम्हाला ते जमलं, ती गोष्ट पटली, आपल्या घरच्या आणि गावाच्या दुसऱ्या लोकांनाही ते सांगा. मग हे आपलं ध्येय पूर्ण साध्य होईल. आणि बहुतेक मला जी माहिती आहे आणि भावना मॅडम सांगतील, 4 आठवडे जर तुम्ही हे चांगला प्रोग्राम पूर्ण केला, तुम्हाला ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेटकडनं सर्टिफिकेट मिळणार आहे स्वदेशकडनं. ती खूप चांगली संधी आहे. एक आपण मोठा साजरा गावात करू, जिथे तुम्हाला प्रत्येकीला जे जे याच्यात पात्र ठरतील 4ही आठवड्यात त्यांना एक चांगलं सर्टिफिकेट देण्यात येईल. खूप कौतुक. आम्हालाही खूप आनंद होईल जर सगळ्यांनी हा सर्टिफिकेट मिळवला तर. पण त्याच्याशिवाय मुख्य जसं म्हणलं, इथे सांगितलेल्या गोष्टींची माहिती समजून घेणं आणि आत्मसात करणं, हे आपलं मेन उद्देश असायला पाहिजे. पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि आपण आता लवकरच करिश्मा मॅडमला ऐकूया. थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू सो मच मंगेश सर. मंगेश सरांनी आपला खूपच प्रोत्साहन वाढवलाय, आपल्याला एनकरेज केलेलं आहे. आपण भाग घेऊया. आता मी जास्त वेळ घेत नाही कारण बराचसा वेळ आपल्याला आधीच आपला गेलेला आहे. करिश्मा, आय वुड क्विकली इन्व्हाइट यू ओव्हर. सॉरी वी लॉस्ट सम टाइम, but that's so obvious with so much people excited and coming together today. So करिश्मा बुलानी मॅडमचं नाव आहे. जसं मी आधी सांगितलं, खेळ खेळ वैज्ञानिक आहेत ते. त्यांचं प्रोफाईल खूपच मोठं आहे. ते मला समजवायला खूप वेळ लागेल आता. पण ते स्पोर्ट्स सायंटिस्ट आहेत. खेळ वैज्ञानिक आहेत आणि फाउंडर आहेत ह्युमॅनिक्सचे. त्यांनी या विषयांवर ते ऑस्ट्रेलियामध्ये शिकलेल्या पण आहेत. UAE आणि भारतात त्यांनी खूप काम केलं आहे. खूप शाळांबरोबर, मुलांबरोबर त्यांनी काम केलंय लाखोंमध्ये आणि ते एक्सपर्ट आहेत. तर आता मी त्यांना आमंत्रित करते. ते या सेशन घेतील. ते हिंदीमध्ये बोलतील. कुठेही अडचण आली तर मी समजून सांगेन. मला प्रश्न तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये विचारू शकता. करिश्मा, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ माय हेल्प, आय एम व्हेरी मच हिअर. ओव्हर टू यू. वेलकम. Hi everyone. So I will speak in Hindi to the best of my ability, but I will need your help if you feel that something has lost in Yes, translation. yes. तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम करिश्मा है. मैं यहीं से मुंबई से हूँ. मेरा स्कूल और कॉलेज यहीं से हुआ था. फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई 10 साल के लिए मेरी सारी पढ़ाई करने, और वहीं पर सारे मैंने अपना स्पोर्ट साइंस, न्यूट्रिशन 10 सालों के लिए मैंने डिग्री किया हुआ है, और वहाँ पे एथलीट के साथ मैंने थोड़े काम किया है. तो अभी मैं मुंबई में काम करती हूँ. और स्पोर्ट साइंस मतलब फैंसी साउंड होता है, लेकिन सिर्फ ये है कि मैं स्पोर्ट्स पीपल के साथ काम करती हूँ और वो देखना चाहती हूँ कि उनका परफॉर्मेंस, उनका स्पोर्ट्स में वो कैसे जीत जाए. तो हम क्या करें, कैसे ट्रेनिंग करें, कैसे उनका टीम बनाए, क्या न्यूट्रिशन में वो खाना में क्या दे दे ताकि वो सारे गेम जितने जीत सके. तो वो ही स्पोर्ट साइंस है. और हम स्कूल के बच्चों के साथ भी बहुत ज्यादा काम करते हैं इसी सेम स्पोर्ट्स में. तो स्पोर्ट्स साइंस में हम बॉडी को समझते हैं. हम बहुत ध्यान देते हैं कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है. हम जो एक्सरसाइज करें तो अंदर क्या हो रहा है, जो भी हम खाना खाए तो बॉडी के अंदर कैसे और क्या चल रहा है, और हम उसको बेटर कैसे बनाएं, उसको इम्प्रूव कैसे करें. तो ऐसे हम लैब में, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तो हम ऐसे ऑस्ट्रेलियन के ओलंपिक एथलीट्स के साथ मैं थोड़ी सी काम कर रही थी, उनका सारा फिटनेस टेस्टिंग वगैरह देखने. तो ये सिर्फ मेरा बैकग्राउंड है जहाँ पे मैंने सीखा हुआ है. और ज्यादातर अभी स्पोर्ट में कोई
जीत जाएगा या कोई हार जाएगा, तो वो हमारे जॉब है देखने कि वो ज्यादातर जीत जाए और कम हारे। तो इसीलिए ये सारा नया साइंस आ गया है। और मेन चीज जो मैंने देखा है, अभी मैंने पढ़ाई अभी 10 साल से की है और मैं 7-8 साल से काम कर रही हूँ इस फील्ड में। और एक ही बहुत ही जरूरी बात मेरे मन में आ गई कि जो भी हम खाना खाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादातर वो सबसे बड़ा वो उसी से हम डिसाइड करते हैं कि कोई जीत सकता है कि हार सकता है। वो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पोर्ट्स में। क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जो भी हम अपने बॉडी में डालते हैं, अपना फुल बॉडी अंदर से ऐसे ही बन जाता है। तो अगर किसी का बॉडी टाइप ऐसे होगा इस तरफ वाले, या कोई ऐसे बॉडी टाइप होगा, मेन चीज है वो क्या खाना अपने डे बाय डे अपने सिस्टम में क्या डालते हैं। तो इसीलिए जो हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन हम कहते हैं, बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी पार्ट है। तो हम जो भी अगर हम हेल्दी खाए, हमारा ठीक से शरीर बन जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, इंग्लिश में हम कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, और वो उससे सही मैंने कभी सुना ही नहीं है। क्योंकि जो भी हम अपने प्लेट में डालते हैं, वो अपने बॉडी में जाके हमारी बॉडी उससे ही बनती है। हमें ऐसे दिख नहीं जाएगा क्योंकि हम बॉडी के अंदर देखते नहीं है, लेकिन ऐसे ही हमारे शरीर बन जाती है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। और जो भी लोग चॉइस बनाते हैं खाना खाने, वो सब अपने बॉडी के अंदर जाके वो ही हमारा फुल शरीर उससे बन जाती है। तो अलग अलग बॉडी टाइप है। कई लोग बहुत पतले होते हैं, कई लोग बहुत मोटे बन जाते हैं, कई लोग हेल्थी होते हैं, कई लोग अनहेल्थी होते हैं। लेकिन उनका एक ही रीजन है कि वो अपने प्लेट में क्या डालते हैं और वो अपनी बॉडी बनाती है। तो एनी क्वेश्चंस अप टिल हियर भावना? इज इट फाइन? इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? हाँ, मुझे लगता है बहुत इजी था। हाँ, समझ आ गया। ओके, You can तो continue. दैट वाज पार्ट 1। तो याद रख लो कि स्पोर्ट्स में या हेल्थ में या हमारी लाइफ में हम जो भी खाना खाते हैं, वो एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेल्थ के लिए। और हेल्थ का मतलब क्या है? अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हो तो आप बोलेगे तो मेरे लिए तो ये जरूरी ही नहीं है। हेल्थ तो सब कुछ कवर करता है। कैसे बॉडी है हमारे, दिखने में हम कैसे बॉडी बनाते हैं। जैसे अपने बाल, या तो हेल्दी बाल है या तो सारे हमारे बाल गिर रहे हैं, वो सब अपने न्यूट्रिशन से, खाना से होती है। हमारी स्किन साफ सुंदरी है या तो मार्क्स आती है। ये सब जो भी हम प्लेट में डालते हैं वो सब, और हम या तो खुश है या दुखी है, वो सब हमारे प्लेट में जो है, हम जो भी खाना खाते हैं दिन भर, उससे डिसाइड हो जाता है। तो ये है आज के दिन में जो प्रॉब्लम होती है हेल्थ में, जो सबकी हेल्थ थोड़ी सी तो खराबी हो जाती है, क्योंकि हमारे जो खाना जो मिलती है वो सब ऐसे तरह की खाना मिल जाती है। और हम सारे लोग ये खाना समझ के हमारा मेन डाइट इस पे करती है, क्योंकि ये सब जगह अवेलेबल है। तो मैं पहले आपको दिखा दूंगी क्या नहीं करना है। जो जो चीजों हमें बीमार बनाती है, जो जो चीजों हमारी हेल्थ से निकाल जाती है, जो चीजों हम स्पोर्ट्समैन को कभी नहीं दे देंगे, क्योंकि ये इतनी अनहेल्दी है कि वो उनकी बॉडी अंदर से थोड़ा सा जैसे कि मशीन खराब हो जाता है अंदर से, हमारी बॉडी सेम वे में खराब खाने से अंदर से मतलब रस्ट हो जाती है, थोड़ा सा खराब होने लगती है। और फिर हम ना तो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, ना तो हेल्दी जी सकते हैं, ना तो हम अच्छे दिख जाएंगे, ना तो हम कुछ काम भी कर सकते हैं। तो सब कुछ अफेक्ट हो जाता है हमारे, हम जो खाते हैं उससे। आज मैं दिखा दूंगी कि क्या क्या खाना नहीं खाना है, जो बहुत ज्यादातर अवेलेबल है, जो हम हर जगह मिलते हैं, लेकिन ये सारे जो है हमारे हेल्थ से ले जाते हैं, हमारे हेल्थ को खराब कर देते हैं। चिप्स, जो भी आप सुपरमार्केट में खरीदोगे, जो पैकेट में आ जाता है, वो हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ ये ऐसे ऐसे हम बहुत सारे खाना देखते हैं, लेकिन याद रख लो कि ये खाना नहीं है। ये जो स्नैक्स आते हैं, इसमें हमें कुछ भी मिलेगा नहीं जो हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है।
ये सारे मैं बस आपको पिक्चर दिखा रही हूँ कि क्या क्या खाना नहीं है, जो हेल्दी खाना नहीं है, जो हम सारे दिन भर अभी आदत पड़ जाती है हम सब लोगों की ये खाने, क्योंकि सब जगह मिलता है, बहुत इजी है, प्राइस भी कम है और हमारी हम सोच के नहीं खाते हैं, लेकिन ये ही चीजें हैं जो हमारे हेल्थ को खराब कर देती है। ऐसे हमारे जो भी पैकेट के सामान, जो भी चिप्स, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स, ये सारे हमारे बर्गर्स, पिज्जा, जो भी पैकेट में फास्ट फूड आते हैं, इन सब से हमारी हेल्थ थोड़ी सी कम हो जाती है और कम होती रहती है। और ज्यादातर बच्चों के लिए जब हम यंग होते हैं तो ये आज की दुनिया जैसे है ना, ये सब जगह मिलती है। जब मैं छोटी थी और जब मैं बड़ी होती थी मुंबई में, ये इतना मिलता नहीं था। ये आजकल हम कहीं भी जाए हमें सिर्फ ऐसा खाना मिलेगा। ठीक है, अभी ये खाना क्यों, मतलब ये खाना नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये सब फैक्ट्री में बनती है। तो ये जो भी सामान जो पैकेट में आए, ये सब फैक्ट्री में बना हुआ खाना है। तो ये ऐसे बनती है फैक्ट्री में। सारा जो भी खाना अभी फास्ट फूड कहते हैं हम, जो पैकेट में, जो सुपरमार्केट में मिलती है, और ये सब खाना अपने लिए नहीं है। अभी मैं जल्दी से बता दूंगी हमें क्या खाना है, ठीक है। और ज्यादातर हम अभी लोग ठीक खा रहे हैं, लेकिन बस याद रखना है कि ऐसे ही खाना चाहिए लाइफ लॉन्ग। और हम फैक्ट्री वाला जो बना हुआ खाना जितना भी हम कम खा सके उतना ही बेटर होगा हमारे हेल्थ के लिए। तो अगर वो सारा चीज नहीं खाना है तो मेन क्वेश्चन है हम क्या खाएं। जो भी खाना धरती से निकलती है, ठीक है, तो खाना का मतलब क्या है कि मतलब खेती से, धरती से, या तो हम चिकन मटन वगैरह या फिश, ये सब चीजें खाना है। ये सब फैक्ट्री में नहीं बने हुए हैं, ये हमारे धरती से निकल आ गई है। और ये खाना जो लोगों सालों से खाते आ रहे हैं वो ही अच्छा खाना है और वो ही हमें खाना चाहिए। तो जो भी, अगर इजी होगा समझाने में तो मैं कह दूं कि जो भी मतलब खेती से निकलते हुए खाना जो आता है, और मैं आपको थोड़े पिक्चर्स दिखा दूंगी ताकि आपको भी मन में आ जाएगा कि कैसे चूज करें खाना जो अच्छा हेल्दी है। जो भी फार्म में बने, हमारे सारे जो सब्जी, सारे फ्रूट, अलग अलग टाइप्स के फ्रूट, अलग अलग टाइप के सब्जी, लेकिन याद रख लो कि जो भी हमारे धरती से निकल आ गई है वो ही हम खाना कह सकते हैं और वो ही हेल्दी खाना है। ये भी अलग टाइप के फ्रूट। तो अगर मुझे एक पिक्चर में दिखाना होगा क्या क्या ठीक है, हमारा सारा जो सब्जी वाले में मिल जाती है फ्रूट और सब्जी, सब आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादातर अच्छा है। ये सारे हमारे फ्रूट, और जो भी लोकल फ्रूट, जब भी सीजन है कि जब वो फ्रूट अवेलेबल है तब वो खा लो, जब नहीं है तो नेक्स्ट खा लो। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो भी सब्जी वाला, फ्रूट वाला जो मार्केट में मिलती है फ्रेश खाना, जो पैकेट में नहीं आती है, वो सब अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादातर बेस्ट हो जाती है। फ्रूट वाले से जो भी खाना है परफेक्ट है। जिन लोगों खाते हैं तो चिकन, मटन, मीट, वो भी सही है। यहाँ से मटन वाले, चिकन वाले, देखो ये फैक्ट्री से नहीं आती है, ये हमारी अर्थ से आती है, हमारी धरती से आती है। और मेन है क्योंकि हम सारे समुद्र के पास रहते हैं, तो हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छा जो समुद्र से निकल आती है, जो हो भी सी फूड। तो अलग अलग टाइप के फिश, अलग अलग टाइप का जो भी प्रॉन्स आते हैं, कोई भी, मतलब अगर वो फैक्ट्री से ना आई हुई है तो खा लो, जी भर के खा लो। तो ये अलग टाइप की फिश है और ये सब अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे और सही है। और अभी मैं आपको सिंपल बता दूंगी जो भी घर में बन सकता है, जो भी अपना घर का बना हुआ खाना, फिश, चावल, सब्जी और थोड़ा सा फ्रूट के साथ, वो अपना बेस्ट 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 है। और जितना हम ज्यादातर वो जो खाए, ऐसे हमारे सारे सब्जी, ऐसे हमारे सारे जो देसी कड़ी बनते हैं, जो हमारे फिश, मटन, चिकन, सब्जी, जो भी घर का खाना जो हम घर में बना सकते हैं, जो सब्जी वाला से ले सकते हैं, वो सब खाना आपके लिए सबसे हेल्दी है। तो आपकी चॉइस, मतलब हम सब इजी खाना खाने में हम बहुत जल्दी से हम फैक्ट्री वाला खाना खरीद देते हैं।
तो हमारे को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम थोड़ा सा इस तरफ का खाना खाएं जो हेल्दी है। और वो ही मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछ लो, और कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ गया मैं फिर से रिपीट कर लूंगी। ठीक आहे. कोणाला या विषयावर आता जे सांगितलं करिश्मा मॅडमनी, त्या विषयावर तुम्हाला तुमच्या काही टिप्पणी द्यायच्या आहेत का? ते तुम्हाला पटलं, तुम्हाला नाही पटलं, का तुम्हाला प्रश्न आहे काही? का तुम्हाला सांगायचं आहे, की तुमची कशी आहे लाईफस्टाईल? तुम्ही काय खाता? आहे कोणाला बोलायचंय पुढे येऊन? तो आवाज तो मुझे किसी का नहीं आया यहाँ पर अभी करिश्मा। तो इनफैक्ट मुझे लगता है मैं सबके बिहाफ में कुछ इनपुट देना चाहती हूँ। जैसे अभी हमारा ये जो सेशन हो रहा है, ये तो मतलब रायगढ़ में मोस्टली ये लोग सुन रहे हैं और ज्यादातर ये औरतें, घर की औरतें सुन रही हैं जो किचन संभालती हैं। तो गाँव में तो कम से कम मतलब मैं तो यहाँ से बैठ के मुंबई से बैठ के बोल सकती हूँ, मैं चाहती थी कि वो लोग बोलें। गाँव में तो मेरे हिसाब से सिटी जैसा लाइफ़स्टाइल अभी है नहीं। इतना एक्सपोज़र टू बर्गर, सैंडविचेज़ और पैकेज्ड फूड नहीं है जितना अभी तक हमारे मुंबई में है। पर हाँ, थोड़ा-सा क्या कह सकते हैं उसको लोकल जंक फूड जैसे अगर आपको पता हो तो वड़ा पाव है, मिसल पाव स्टिल इज़ अ बेटर वर्ज़न जिसमें स्प्राउट्स हैं, बट वी हैव टू ईट इट विद ब्रेड। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है लोकल जंक फूड दैट कुड बी वन प्रॉब्लम बट मोस्ट ऑफ दीज ये लोग खुद ही फार्मर फैमिली हैं तो ये लोग अब सब्जी अपनी सब्जियां बहुत लोग तो अपने ही किचन गार्डन में उगाते हैं पर फिर भी शायद कहीं तो भी हेल्थ बैक सीट रहती है ना जैसे मैंने भी अपने सेटिंग कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि औरतें अपने बच्चों के लिए वो सब्जियां शायद बना देती होंगी या हस्बैंड के लिए चिकन बना देती होंगी या पर कभी कभी मुझे क्या खाना चाहिए दिन में कितने बार खाना चाहिए कितना ख्याल रखना चाहिए मुझे लगता है वो कहीं पर मिस आउट हो जाता है दिस इज माय कमेंट तो जस्ट विद दैट वन थिंग ऑल्सो, अगर ज्यादा हम सब्जी खाए तो हम हमारे आदत पड़ती है कि हम बहुत ज्यादा राइस, रोटी, आलू वगैरह खाएं क्योंकि टेस्टी है, इजी है और हम थोड़े फुल लगते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम जो ग्राउंड के ऊपर वाले जो सब्जी, हाउ डू यू से दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड? हाँ तो मिट्टी से ऊपर जो सब्जियां उगती हैं तो हाँ, मातीच्या वरती ज्या भाज्या उगतात ते तो ते म्हणतात तो वो जो हम ज्यादा वो खाए और थोड़े कम राइस, थोड़े कम रोटी, थोड़ा कम आलू, जो कलर वाले सब्जी होते हैं तो वो हम ज्यादातर खाए, वो इतना हेल्थ बेनिफिट है। सॉरी सॉरी म्यूट करा सगळ्यांनी अर्जुन या ओके तो अगर वही मैं कह रही हूँ कि अब बहुत तर त्यामुळे तरी निदान आपल्याला काय करायचं एकत्रित यायचंय त्याच्यासाठी तो हाँ, तो ज्यादातर अगर आप हेल्दी वैसे भी खा रही हो, अपनी खेत है, आप फ्रेश खा रही हो खाना, मतलब फैक्ट्री वाला खाना कम खा रही हो, तो वो वैसे भी बहुत ही अच्छे है। वो नंबर 1 स्टेप परफेक्ट है। मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ध्यान दे दो कि ये सब आ रहा है अभी सब हमारे जगह में, और हमें बहुत ही ध्यान देना है कि हम हमारा जो खेती वाला खाना है, हमारा जो लोकल खाना है, हम उनको छोड़ के ये सारा जंक फूड ना खाए इतना ज्यादा। वो पहली बात है। अभी वो जो हम खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा सब्जी, जितना भी हम सब्जी खा सके, जो ग्राउंड के ऊपर वाला सब्जी है और जिसमें ज्यादा कलर है, जो कलर वाला है हम वो खाए। हम सिटी में लोग बहुत दवा लेते हैं, सप्लीमेंट्स, ये वो एक्स्ट्रा, क्योंकि हम न्यूट्रिशन चाहिए। वो सारे वो सब्जियों से बना हुआ है, उन्हीं के केमिकल से बना हुआ है ये सब। तो अगर आप ज्यादा सब्जी और फ्रूट खा रहे हैं तो उनकी कभी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमारे प्लेट में ना हम बहुत ज्यादा राइस, 3-4 रोटी, आलू डालते हैं, तो वो थोड़ा कम डाल दो, क्योंकि उसमें से कोई हमें कुछ, वो सिर्फ एनर्जी मिलती है, कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलती है। न्यूट्रिशन का मतलब जैसे खाना को भी हम दवाई कह सकते हैं, हमारे लिए इतना अच्छा है जो हमारी बॉडी हेल्दी बन सके, वो सब सिर्फ सब्जी और फ्रूट में मिलते हैं, और थोड़ा सा मीट और जो सी फूड है, फिश, प्रॉन वगैरह। लेकिन व्हीट, रोटी, राइस और आलू,
कम कर लो। ठीक है, ठीक है. आय थिंक क्लिअर आहे. किसी को कुछ कोणाला काही विचारायचं आहे का? आपण पुढे वळूया आता. शिवदास ने हाथ ऊपर किया था. अच्छा. हा, ऍक्च्युली भावना मॅडम तसा क्वेश्चन विचारला होता, पण थोडं पुढे तोच क्वेश्चन कंटिन्यू आहे. मॅडम, याच्यामध्ये शक्यतो लोकल याच्यामध्ये की वडापाव, समोसा, पॅटीस, मिसळपाव हे कधी कधी खूप जास्त खाल्लं जातं. म्हणजे किती खाणं योग्य आहे आणि किती टाळायला पाहिजे, हा क्वेश्चन होता. अच्छा. आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन. तो अभी देखो, मेरा एक रूल है, क्योंकि यहाँ भी सिटी में भी हम जंक फूड थोड़े खाते हैं और थोड़ा मजा भी आना चाहिए लाइफ में, क्योंकि हेल्दी फूड कभी कभी थोड़ा बोरिंग हो सकता है. तो क्या मेरा एक रूल है ना, 80-20. तो 80% टाइम आप जितना भी हेल्दी खा सके, मतलब अपना सब्जी, फ्रूट, अपना थोड़ा सा राइस, फिश, नॉर्मल घर का खाना हेल्दी. अभी हफ्ते में एक बारी आपको कुछ स्नैक खाना है, या तो संडे रख लो एक दिन हफ्ते में जो आप खा लो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, वो हमारा मेन खाना बन जाता है. एक दिन हम जंक फूड खाए, फिर नेक्स्ट दिन, मतलब हर दिन तो नहीं खाना चाहिए, और हफ्ते में एक बारी से ज्यादा नहीं खाना चाहिए. तो मैं जब सिटी में लोगों को स्पोर्ट्स में जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि 80% टाइम, मतलब आपका ज्यादातर आपका खाना हेल्दी होना चाहिए, और 1 या 2 बारी हफ्ते में एक स्नैक ले लो, एक कुछ वड़ा पाव, एक कुछ स्नैक, और अगर सॉफ्ट ड्रिंक भी ले लो तो वो भी स्नैक बन गया, वो आपका स्नैक का चीटिंग हो गया. मतलब हफ्ते में 6 दिन आप साफ खा लो घर का, और एक दिन या तो आपको संडे चाहिए या सैटरडे, और एंजॉय कर लो, जो भी खाना है खा लो. ठीक है. करिश्मा, थैंक यू मैम. अभी आपने जो सारे ये वेफर्स, कुरकुरे, ये सारा कुछ आपने दिखाया, ये टीवी में इतना ऐड होता है कि बच्चों के माइंड में जैसे प्रिंट हो गया है. सो एंड इट्स लाइक कहीं भी आप बाहर जाते हो, पहले हमको कुरकुरे चाहिए, कोला चाहिए, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो जंक फूड है. सो आज के युग में बच्चों को कैसे हैंडल करें, या बच्चों को कैसे हम समझाएं इसके बारे में, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस कर रहे हैं. हाँ, आप बहुत ही सही कह रहे हैं, और इसीलिए ये सब एडवर्टाइज करते रहते हैं, क्योंकि ये मतलब हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. आप कभी नहीं देख लोगे कि एप्पल का कोई एडवर्टाइज कर रहा है या सब्जी का कोई एडवर्टाइज कर रहा है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए इतना अच्छा है. तो मतलब सिर्फ हमारी फार्मर्स को इसके बेनिफिट होती है जब हम ऐसे खाते हैं. जब खाने को एडवर्टाइज करना पड़ता है तो वो फूड ही नहीं है, वो फिर प्रोडक्ट है जो लोगों को खिलाना चाहते हैं. अभी बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि उनकी माइंड में ये है कि सब खा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स खा रहे हैं, मुझे भी चाहिए, और इतना टेस्टी है. तो हमें क्या करना है ना, सिर्फ बच्चों को सेम रूल, कि घर में जो खाना बन रहा है वो बहुत ही साफ बनेगा, हमारे घर के अंदर जंक फूड नहीं आ जाएगा. तो हमारा सब्जी, राइस, रोटी, जो भी हम घर में बनाते हैं वो इतना हेल्दी होगा. तो 1, 2, 3 बारी अगर बच्चे बाहर भी खाना चाहते हैं तो वो खा सकते हैं. लेकिन अगर घर में भी आ रहा है जंक फूड, तो फिर उनके मतलब 80% उनका खाना जंक बन जाता है, और फिर आदत पड़ जाती है, फिर हटने में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. और मैंने देख लिया है बच्चों इतने अनहेल्दी, 12-13 साल के बच्चों को डायबिटीज, इतने मोटे होते हैं कि वो मतलब 20 मीटर भी नहीं भाग सकते हैं. स्पोर्ट्स तो हम भूल जाए, हेल्थ भी तो भूल जाए, पढ़ाई में उनकी ठीक से नहीं चल रही है, क्योंकि ये सारी चीजें जैसे कि पॉइजन है ना. हम हिंदी में आई डोंट नो व्हाट द वर्ड फॉर पॉइजन इज, बट वो मतलब जो भी अंदर से हमारे शरीर को खराब कर सकता है वो सब इन चीजों में है. और ये मैंने बहुत सालों से रिसर्च किया है. एथलीट को भी, जब हम स्पोर्ट को भी कहते हैं, स्पोर्ट्समैन में जब हम मूवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स के साथ भी काम करते हैं, हम सेम यही तो हमारा प्रॉब्लम है. हम ये सब जो जंक फूड निकालते हैं और नॉर्मल अपने सब्जी, राइस, फिश वो ही वापस ले आते हैं उनके खाने में. तो आप लोग वैसे बहुत ज्यादातर लकी है, क्योंकि सिटी में इतना ज्यादा आ गया है जंक फूड कि लोगों को पता भी नहीं जंक फूड है क्या और नॉर्मल फूड है क्या. आप लोग सबसे लकी है कि अभी तक खेती है, आपका खाना बनता है. और सारी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी लोग अभी इतना ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि वापस जाए हम पुराने दिन में जब खेतियों से खाते थे, फ्रेश
सब कुछ मतलब खेती से हम घर में खाना पका के खाते थे। तो बच्चों के लिए अभी जितना भी डिफिकल्ट हो, आदत बना दो कि घर में जंक फूड नहीं आ जाएगा। घर में हम सिर्फ खेती का खाना खा लेंगे। जो भी बाहर आपका मतलब फ्रेंड्स के साथ जाए या किसी तो थोड़ा सा खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। Thank you. मुझे लगता है सुधीर वानी सर ने करिश्मा जी, ये चाइनीज भी जो है, चाइनीज का भी बहुत अट्रैक्शन अभी हो रहा है, तो वो उसके बारे में भी थोड़ा आप अगर गाइडेंस करेंगे तो अच्छा होगा, चाइनीज फूड के बारे में प्लीज। तो चाइनीज फूड मतलब नूडल्स होंगे, और नूडल्स भी वैसे चिप्स जैसे ही है। उसमें कुछ हेल्दी है ही नहीं। हम चाइनीज फूड में सब्जी खाते ही नहीं है, हम चाइनीज फूड में अच्छे क्वालिटी मीट खाते ही नहीं है। तो ये जो भी चाइनीज जो बन रहा है हमारे यहाँ के देश में, वो सब जंक फूड के ही सेम उसमें ही आ जाती है। हमारे जो है ना, जो देसी खाना, जो सब्जी वब्जी बनती है, उससे बेहतर और कुछ नहीं होगी। चाइनीज में हम बहुत सारा अजीनोमोटो डालते हैं, बहुत सारे सॉसेस डालते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स। तो क्या है, अगर हम चाइनीज फूड को खोल के देख ले क्या क्या है अंदर, तो हम देख लेंगे नूडल्स है। नूडल्स तो चिप्स जैसे ही है क्योंकि व्हीट से बना हुआ है और सारा फैक्ट्री में बना हुआ है। उसके अंदर हम सोया सॉस डालते हैं, कोई दूसरे सॉस डालते हैं। ये सब मतलब केमिकल है। ये आजकल के सॉसेस फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर खाना से नहीं बनता है, ये सब केमिकल से बनता है। तो हम ये सारे डालते हैं, फिर हम ऑयल में फ्राई करते हैं। तो इतना ज्यादा अनहेल्थी है। टेस्टी तो है, लेकिन चाइनीज भी आपका, जो मैंने बोला ना, हफ्ते में एक बारी जंक फूड जैसे ऐसे एंजॉय कर लो। मैं नहीं कह रही हूँ कि न खा लो, सब कुछ खा लो, लेकिन अपने घर में और हफ्ते में 5 या 6 दिन अपना देसी खाना, फिश, सब्जी, राइस और थोड़ा सा मीट अगर खाते हो, घर में बनाया हुआ जैसे भी सिंपल वे में खा लो। और हफ्ते में 1 या 2 दिन रख लो जहां आप इससे बाहर कोई भी खाना खाना है खा लो। लेकिन ध्यान रख लो कि जो भी जंक फूड है वो बहुत ज्यादा ट्राई करिए कि हम और भी खा लो, और भी खा लो, और भी खा लो। इजी है, बहुत सस्ता मिलता है, सब जगह मिलती है, बच्चों को पसंद है, हमें पसंद है। लेकिन सैडली ना वो ही हमारे हेल्थ को खराब कर रही है। और हमारी देश में इतना इतना अच्छे सब्जी मिलते हैं, इतना फ्रेश खाना मिलते हैं, हमारी खेती की जो जो मतलब वहां हमारी धरती से खाना जो निकल रही है वो इतनी अच्छी है। दुनिया में इतने ज्यादा जगह है जहां इसे मिलते ही नहीं। हमारा दूध का क्वालिटी भी अच्छा है, हमारे पनीर की क्वालिटी अच्छी है, हमारे सब कुछ अच्छा है जो लोकल है। तो जितना भी वो खा सके वो खा लो। मला वाटतं आता म्हणजे रायगडमध्ये जे जॉइन झाल्यात ना महिला, त्याच्यातलं तुम्ही जे आहे त्या आपण या सगळ्या विषयांवर म्हणजे न्यूट्रिशन किंवा काय खायला हवं यावर इतका वेळ बोलतोय. तुमच्यातलं कोणीतरी पुढे येऊन मला वाटतं की तुम्ही तुमची प्रतिक्रिया द्या या पूर्ण विषयावर. कोणी बोलेल का? दीपाली किंवा कोण मला दिसतंय इकडे ताई किंवा नीता मॅम त्यांना पुढे बोलवतील. पण रायगडमधून जे जॉइन झालेत महिला, तुम्हाला काय या विषयावर बोलायचंय का? संचाली, तुम्ही दिसताय मला. संचाली, तुम्ही बोला. काय वाटतं तुम्हाला या विषयावर जे मॅडम म्हणतायत त्या? जंक फूड. अनम्यूट करा, अनम्यूट. हाय मैडम। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपने बहुत अच्छा कहा, हेल्थ के बारे में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी टिप्स दी। थैंक यू। हमारे इधर तो घर में ही सब भाजी और खेत में ही होती है सब कुछ। हाँ। संचाली, आप बहुत लकी है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, हम जहां भी देख ले दुनिया में ना, जंक फूड का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि जिन से मैं बात कर रही हूँ ना, आप लोग सबसे लकी हो कि आपका खाना मिल जाता है। हम सिटी में रहते हैं ना, जो शहर में रहते हैं और जो बाहर गांव रहते हैं इंडिया के बाहर, मतलब वो ऑप्शन है ही नहीं। मतलब उनके पास इतना, क्योंकि जंक फूड इतना आ गया है, क्योंकि जंक फूड से बहुत ज्यादा बिजनेस चलता है लोगों का ना। तो जंक फूड बेचने में, एक जंक फूड प्रोडक्ट है, वो खाना नहीं है। जैसे संचाली बोल रही है कि, और जैसे हम सबने भी बोला कि ये कम से कम इन गाँव में वो तकलीफ इतनी अभी तक गई नहीं है, पेनिट्रेट नहीं हुई है। पर संचाली, तुम बताओ कि तुम कितनी हरी सब्जियां खाती हो?
हरी मुद्दा सब्जियां आज हमारे ये है महिला दिवस पे कि औरतें कितना अच्छा न्यूट्रिशन का अपना ख्याल रखती हैं। नहीं, हमारे खेत में ही होती है सब हरी सब्जियां। हाँ, तो मेरे बच्चों को ससुर खिलाती जी हो, करते हैं। हस्बैंड को खिलाती हो, खुद भी खाती हो? नहीं, सब लोग खाते हैं। हम बाहर हाँ। से बाजार से कुछ नहीं लाते। अच्छा मिर्ची, अच्छा बैंगन, अच्छा। हाँ हाँ। तो करेला। तो संचाली क्योंकि उस एरिया में काम भी करती होंगी, तो संचाली को पता होगा की औरतों के हेल्थ मतलब महिलांचे आरोग्य आणि आहार त्याच्यात काय काय तिकडे म्हणजे लोकली आपल्याला काय काय प्रॉब्लेम दिसतात त्यांच्या आहारात, महिलांच्या आहारात? संचाली, हाँ, महिलांच्या आहारात तुला मग काय माहिती आहे, सांगता येईल गावात? कशामुळे काय प्रॉब्लेम आढळून येतात? गावात कुठल्याही महिला, काही लोक गावात काय, कारण की आमच्या गावात अर्धी लोक शेती करत नाही, त्यामुळे ते बाहेरचं आणून खातात. अच्छा. हा, बाहेरचं, कारण की आमच्यावर खूप कमी लोक आहेत की शेती करतात. बाहेर भाजीपाला वगैरे खूप जण कमी करतात. म्हणजे त्यातली मोजकी 80 घर आहेत ना, त्यातली 4-5 घर आहेत अशी की शेती स्वतः करतात. बाकीचे बाहेरून आणून प्रोडक्ट खातात. त्यामुळं बीपीचा त्रास, ह्याचा त्रास, रक्तदाबाचा त्रास खूप जणांना होतं. अच्छा. ठीक आहे. ठीक आहे. हां, मग मॅडम जे माहिती देत आहेत मला खात्री आहे सगळ्यांना पोहोचेल. तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हैं करिश्मा मैम। करिश्मा आप कंटिन्यू कर सकती हैं आगे आगे देन प्रोबेबली हम लोग और सवाल पूछेंगे। और एक और पॉइंट है, अच्छा है कि ज्यादातर आप घर का खाना बना रहे हैं, लेकिन एक चीज की ध्यान रख लो कि जो ऑयल मिलती है, जो मतलब ये कनोला, सफोला, जो बड़े-बड़े जो दुकान में हम ऑयल खरीदते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्थ के प्रॉब्लम हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सेम है, वो भी फैक्ट्री में बना हुआ ऑयल है। तो याद रख लो, हम बहुत ही लकी है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। दुनिया में सबसे बेस्ट चीज जो कुकिंग के लिए है, घी, हमारी जो देसी घी है, बटर, और उसी में हम सब कुछ खाना पका सकते हैं। तो अगर आपको मिल सके और कोई होगा जो बनाता है लोकली, जो गांव में है, या बस याद रख लो कि जितना भी आप घी और बटर में पकाए खाना, उतना ही अच्छा होगा। ऑयल जितना भी कम यूज कर लो और सब कुछ घी और बटर में पका लो, क्योंकि वो भी देखो, रोटी का जो व्हीट बनता है वो भी फैक्ट्री फूड ही बन गया आजकल, क्योंकि वो खेती से फैक्ट्री में जाता है और वापस आ जाता है पैकेट में। ऑयल भी अभी फैक्ट्री फूड ही बन गया है। तो जो एक चीज जो है हम सब यूज करते हैं, मैं सबके घर में कोई मेरा हम खेतियों से ढूंढ के ले आते हैं, और हमारे जो है ये देसी घी, वो आपका सबसे हेल्दी, सबसे टेस्टी, सबसे न्यूट्रिशियस, मतलब सबसे हेल्थ के लिए अच्छी चीज है। तो सब्जी, फ्रूट, देसी घी, और जो भी अपने खेती से बन रहे, तो अगर सबका खेती ना हो तो जिनके पास हो एक्सेस, तो आप देख लो कि उनको उनके साथ कैसे शेयर करें। आप कुछ सोल्यूशन निकाल दो कि सब गांव में थोड़ा सा हेल्दी खा रहे हैं। और मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि बच्चे का ध्यान रख लो, क्योंकि बच्चे को हम अभी, जब मैं भी बड़ी होती थी तो इतना जंक फूड नहीं था। आज शहर में भी, गांव में भी इतना ज्यादा आ गया है जंक फूड, और बच्चे को पता नहीं है डिफरेंस, उनको तो पता ही नहीं चलेगा, उनको मजा नहीं आएगा सब्जी खाने, तो उनको मजेदार खाना चाहिए होगा और सारे फ्रेंड्स खा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको अभी है जो सिस्टम, हम घर में खाना पकाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, हम खेती से खाते हैं, तो ये अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ बच्चों के साथ, क्योंकि अगर हम स्ट्रिक्ट ना हो जाए इस टाइम पे ना, तो फिर उनकी आदत पड़ जाती है और फिर बहुत लेट हो जाती है वापस ले आने इस हेल्थ खाने में। निशा धामनकर कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते निशा। म्हणजे इथे त्या सगळ्या महिला आहेत ना, त्या सगळ्या शेतकरी आहेत, आणि मी आशा वर्कर म्हणून काम करते. आणि आता दुसरं म्हणजे इथे 10 महिन्यातून 1 महिलेला हाडांची झीज होते. म्हणजे हा त्या पद्धतीच्या खाण्यापिण्याबद्दल तुम्ही सांगाल? नाही, मला ना पूर्ण ऐकू नाही आलं. निशा, नेटवर्क मध्ये मला अर्धच ऐकू आलंय. मैं बताता हूँ क्या बोला उन्होंने, क्या कहा करिश्मा की हम। हाँ ठीक है, निशा बता, निशा सांगा तुम्ही। ऍक्च्युअली ना, आता इथे ज्या शेतकरी महिला आहेत ना, त्या 10 महिन्यात
महिलेला प्रत्येकीला हाडांचा प्रॉब्लेम होतोय, म्हणजे हाडांची झीज होते. हा प्रॉब्लेम हल्ली गावाकडे खूप वाढत चाललाय. तर त्याबद्दल जे जे खाणं पिणं असतं तर त्याबद्दल सांगाल का त्या महिलांना? तो डॉक्टर यादव, अगर मुझे समझ में आया तो वो बोल रही है कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। यस, महिलाओं में मतलब अगर 10 महिलाएं हैं तो उसमें से 1 या 2 को तो बोन पेन यानी हाथ पैर में दर्द होना, जॉइंट्स, कमर में बोन्स, दर्द हाँ। होना, ये काफी कॉमन है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा। तो एक्चुअली में मुझे फुल आंसर देने के लिए मुझे सब देखना पड़ेगा कि क्या क्या खा रहे हैं फुल डे में डाइट, और मैं वो कर भी सकती हूँ अगर आप फोटो भिजवा दोगे मुझे कि दिन में क्या खा रहे हैं। तो मैं एक ग्रुप स्टार्ट कर लूंगी, क्योंकि ये जनरली मैं कह नहीं सकती है कि कहाँ से आ रहा है। मुझे देखना होगा कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में या दिन में अपने प्लेट में, अपने बॉडी में क्या जा रहा है, तो फिर मुझे उससे पता चलेगा कि कमी कहाँ हो रही है। लेकिन अगर मैं जनरली कहे तो मे बी कैल्शियम कम होगा, तो मे बी दूध के प्रोडक्ट्स हम थोड़े से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पनीर, जो भी दूध से बना हुआ है वो बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और बोन्स के लिए जनरली भी हमारे ग्रीन सब्जी और दूध से बना हुआ, और दूध से बना हुआ भी घी होती है, बटर होती है, हमारे पनीर, जो भी हमारा देसी जो चीज बनती है, मतलब दूध से कुछ भी दूध का प्रोडक्ट, वो थोड़ा मे बी बढ़ाना है। मुझे पता नहीं आप लेते हो कि नहीं दूध के प्रोडक्ट्स, आपका मतलब दिन भर में आप क्या क्या खाते हो। अगर आप इस कॉल के बाद भी मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो और आप फोटो भिजवा दो कि आप क्या क्या खा रहे हो दिन में, जब भी खाते हो कोई पिक्चर लेके सेंड कर लो, फिर मुझे पता चलेगा कमी कहाँ से आ रहा है। तो करिश्मा, उनका कहना ये है कि गांव में काफी औरतों को, तो ऑन एन एवरेज वो ये देख रही हैं आजकल, ये खेती करती हैं ये औरतें मेजोरिटी पार्ट ऑफ द ईयर, और ये सारी औरतें यूजुअली जॉइंट पेन या बोन के पेन, इनकी कंप्लेन वो ज्यादा करती हैं। तो आई थिंक जैसे आपने बोला कि डेयरी प्रोडक्ट्स या लीफी वेजिटेबल, इसकी कमी, कुछ कमी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर घी भी बढ़ा दे, क्योंकि घी जैसे कि लुब्रिकेंट है ना, जैसे मशीन में हम गाड़ी में डालते हैं ऑयल, जब पार्ट्स बहुत मतलब रब करती है अपने आप से, तो घी बॉडी में सेम चीज कर रही है। बोन के लिए भी अच्छी सी देसी घी और डेयरी प्रोडक्ट्स हम अगर बढ़ा दे तो वो मतलब एक चल सकता है। जो भी कमी है सारे गांव में, मतलब वहां कुछ सब लोग नहीं खाते होंगे, जो एक कुछ कमी चीज है, तो डेयरी प्रोडक्ट से ट्राई कर लो और घी थोड़ा सा बढ़ा दो अगर हो सकता है तो। ठीक है, थैंक यू करिश्मा। साक्षी जाधव का मुझे मैसेज आया कि वो कुछ पूछना चाहती हैं, तो साक्षी आप हो क्या, तुम्ही आहात साक्षी? हाँ है। विचारा ना। हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे भी यही पूछना था, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा को ना लेग पेन था ना, इसलिए यहाँ पर वेजिटेबल्स ही खाते हैं, बाहर का जंक फूड तो वो नहीं खाते, तो भी उनके पैर में, नेक में बॉडी पेन होता ही रहता है। तो क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? और दूध के प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से ना अभी ओल्ड एज के साथ भी हो ही जाता है, तो वन वो है, और बहुत ज्यादा खेती काम करके बॉडी मतलब का यूज होते हैं ना, ये ओल्ड एज से हो ही जाता है। लेकिन एक ट्राई कर लो, घी और बटर जितना भी बढ़ा दो अपनी डाइट में ना। बहुत ज्यादा जो लोग हम शहर में भी देखते हैं ना, जिसके जॉइंट पेन होते हैं, जिसके बहुत ज्यादा ये जो बॉडी एक होती है, ये मैं जनरली कह रही हूँ, हर केस का अलग अलग होता है जो एग्जैक्ट है, लेकिन जनरली में आपको बेटर करना है तो अगर सब्जी खा रहे हो तो फिर थोड़ा सा ऑयल का देख लो। जो ये हमारा कनोला, सफोला, सेसमी ऑयल जो हम बाहर से खरीदते हैं, वो क्या कर देते हैं ना हमारे बॉडी में, हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेमेशन, जैसे अंदर से अंदर आग लग जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी के लिए वो ठीक नहीं है। जैसे कि डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दे, तो वो ठीक से नहीं बैठता है बॉडी में और बहुत ज्यादा पेन आ जाता है टाइम के बाद। तो एक ट्राई कर लो कि जो आप अपने दादाजी के खाना बना रहे हैं, वो कुकिंग ऑयल जो आप दुकान से लेती हो वो बंद कर लो, और उनको थोड़ा सा देसी घी या अच्छे से मक्खन में कुक करके दे दो, वो जनरली बेस्ट वे है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। करिश्मा, आपको कुछ आगे कंटिन्यू करना है बिफोर हम लोग और एक दो सवाल लें, और कुछ I think आपको जो questions अच्छा, are great. I'd like to know where. मैम
हाँ, कौन बोल रहे हैं? वयोमानानुसार कोणता आहार असावा? तुमचं वय काय आहे? म्हणजे कुठल्या वयाबद्दल विचारायचंय तुम्हाला? 18. म्हणजे तर तुम्हाला तुमच्या वयाचं विचारायचंय की 18व्या वर्षी म्हणजे या एज ग्रुप मध्ये काय खाल्लं? ओके. तो करिश्मा वो 18 साल की हैं जो क्वेश्चन पूछ रही है और वो कह रही है कि हमारे एज ग्रुप के लोगों ने क्या खाना चाहिए? एग्जैक्टली सेम जो भी मैं कह रही हूँ ना, जितना भी कम आप जंक फूड खा ले उस टाइम पे ना, आपका मैंने दिखाया था, आपका स्किन, आपका बाल, आपका बॉडी सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। हमारे बॉडी को एक्चुअली में सब कुछ पता है। जैसे कि दुनिया 100 साल पहले थी ना, जहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई हमने अपना खाना के साथ थोड़ा मतलब मिक्सिंग नहीं किया। जो खाना धरती से आती है, हमारी फ्रूट, हमारी सब्जी और हमारी खेती का जो खाना है, जो हमारा फिश है, जो हमारा मीट है, वो मेन है। अगर आप 18 साल के हो और अगर आपको वेट की प्रॉब्लम हो, तो सिर्फ सब्जी, सी फूड खा लो, थोड़ा सा राइस खा लो। आपल्या जांभूळपाडा मराठी शाळेच्या समोर हितवर्धिनी संस्था आहे. त्याच्यामध्ये बोलताय का? पार्लर, अजून कम्प्युटरचा कोर्स, अशा विविध कोर्स आहेत. ते पण आपल्याकडे येण्याचं बघा ना इकडे. नाही ते बोलले पण तेवढा तो सेम अगर आप 18 साल के हो, अगर आप 5 साल के हो, अगर आप 80 साल के हो, जो मैं आज कह रही हूँ वो बहुत ही रूल नंबर 1 है कि जंक फूड जितना भी कम खाए और सब्जी, फिश, मीट, राइस खा सकते हो लेकिन कम रख लो। मेन खाना जो आपका है फ्रूट और जो भी आपका, क्योंकि हम समुद्र के पास रहते हैं, तो जो भी खाना समुद्र से निकल आता है हमारी बॉडी उससे ही बेहतर हो जाती है, क्योंकि बॉडी और जगह मतलब एक साथ बनी हुई है। तो हम जो अपने धरती से और अपने जो समुद्र से खाते हैं ना, कुछ गलत नहीं हो सकता है उससे। तो हर बारी जब भी आप कुछ खाने को, अभी कुछ भी आप देख ले, आप बस एक सवाल पूछ लो कि ये या तो ये फैक्ट्री से आया हुआ है या तो ये हमारे लोकल से आया हुआ है। अगर फैक्ट्री से था तो ये फिर भी बन सकता है और मैं खा सकती हूँ फ्रेश। थैंक यू मैम। थैंक यू। I think Karishma, we can sum up, right? तर 5 वाजलेले आहेत आणि मला वाटतं बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला मिळालेली आहेत. आता मी हा कार्यक्रम बंद करू इच्छिते. कोणाला काही बोलायचं आहे का? मला वाटतं बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली आहेत. बरोबर? कोणाला काही विचारायचं असेल तर चॅट बॉक्सवर लिहा पटकन. इथे म्हणजे स्वदेश फाउंडेशनची जी पूर्ण टीम आहे, आज मंगेश सर स्वतः आपल्याला इकडे जॉईन केले, मिस्टर ब्रेंडन, ऑस्ट्रेलिया काउन्सिलेट आणि यू स्पोर्ट्स, सगळी ही टीम, करिश्मा मॅडम, इतके सगळे जण जमून एकत्र येऊन त्यांनी हा सेशन आणि हा पूर्ण महिना प्लॅन केलाय. तर मी सगळ्यांची खूप खूप आभार मानते. तुमच्या सगळ्यांचा पण खूप खूप आभार मानते की तुम्ही याच्यात भाग घेताय. बट तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने पण तुम्हारे सबके तरफ से मैं यू स्पोर्ट्स में, यहाँ बख्श है, सौप्तिक है, करिश्मा मैडम है, ऑस्ट्रेलियन काउंसिलेट है, आलिया है, ब्रेंडन सर थे, तो मैं उन सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो सब एक साथ आए हैं और हमारे रायगढ़ में जुड़ी हुई औरतें, उनसे आपने अपना समय निकाल कर बातें की और इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल और इतना सिंपल लैंग्वेज में आपने इनको न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट. और हाँ, वी लुक फॉरवर्ड टू द सेशंस अहेड. हाँ, आणि तुम्ही सगळ्या महिलांना पण परत जागतिक महिला दिवसच्या शुभेच्छा. आणि तुम्ही आपला प्रश्न डिजिटल स्वदेशच्या व्हॉट्सअपवर पाठवू शकता. तुमच्या पुढच्या सेशन बद्दल आम्ही तुम्हाला माहिती पाठवूया लवकरच. हा, अनेक संस्था येतात आपल्यापर्यंत पण महिलाच तयार होत नाही कोणत्या. Thank you, Karishma. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Thank you, Soptik. Alia, thank you. नाही, साथ द्यायला साथ देऊ. तुम्हाला आता तुमच्यापर्यंत माहिती